So hello everyone, my dear students. Let us start the next topic, that is practical application of Bernoulli's equation. तो बर्नौलीज इक्वेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बर्नौलीज जो इक्वेशन है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को आप लोग अप्लाई करेंगे. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मींस व्हाट? The density of a fluid is constant at every point. Density of a fluid is constant at every point. So, practical application of Bernoulli's equation. So, it is used for incompressible fluid only. And this equation is very helpful to find the discharge or to find the discharge from the flow measuring devices. So, which are the flow measuring devices? Number one, Venturimeter. Number one, Venturimeter. Number two, pitot tube. Venturimeter. Next one is the pitot tube, and last one is the orifice meter. So these are the devices, okay, that is called as a measuring devices. Okay, these are the measuring devices. So Bernoulli's equation is very helpful to find the calculations in case of these measuring devices, venturimeter, pitot tube and orifice meter. So let us start the first device, that is venturimeter. Let us start the first device, venturimeter. Give the heading venturimeter. So what is venturimeter? So venturimeter is a made up of three sections. First section is called as a conversion portion. The second section is called as a throat, and the third section is called as a diversion section. Okay, so generally the venturimeter is made up of three sections, and it is connected to the circular pipe. This is conversion and this is diversion. Okay, now the diameter at the entry is assumed to be, suppose, D1, entrance of the venturimeter is assumed to be D1, and the diameter of a throat is assumed to be, suppose, D2. Okay, so this is your conversion portion, this is throat, and this is diversion portion. Converging portion, throat, diverging, converging section, throat section and diverging section. So venturimeter is made up of a three section: conversion, after that diversion and throat section. Now a U-tube manometer is used here. U-tube differential manometer is used to measure the pressure difference. To measure the pressure difference at the inlet of the venturimeter, that is conversion section, and the throat. So this is called as a mercury manometer, and this shows you the mercury reading
pressure difference suppose, and this reading is assumed to be x. ओके, इस रीडिंग को क्या बोलना है आपको, x बोलना है. सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉब्लम हम लोग इस रीडिंग को x लेंगे, h नहीं लेंगे. ठीक है, हमेशा हम लोग h2 लेते हैं, बट यहाँ पे h2 नहीं लेना है आपको, यहाँ पे x लेना है. सो दिस इज ए वेंचुरीमीटर. ओके, सो इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड from this direction to this direction, assuming to be left to right. So this is the inlet portion, this is the throat portion, and this is the exit portion of the venturometer. So U-tube manometer, U-tube differential manometer is connected at the inlet and throat section to measure the pressure difference. Okay, so what are the points you have to be remember while solving the MCQs on the वेंचुरीमीटर. अगर आपको वेंचुरीमीटर के ऊपर MCQs अगर सॉल्व करने तो कौन से पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा मैनोमीटर यूज होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे कौन सा मैनोमीटर यूज होता है, डिफरेंशियल U-tube मैनोमीटर जो है वो यहाँ पे यूज होता है. कितने सेक्शन होते हैं, कन्वर्जन, थ्रोट, डायवर्जन. ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं. तो मैनोमीटर कहाँ पे लगाया जाता है, तो मैनोमीटर कहाँ पे लगाया जाता है, मैनोमीटर कहां पे लगाया जाता है, एट इनलेट एंड थ्रोट सेक्शन. किस लिए लगाया जाता है, टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस. सो द वेंचुरोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो. सो इंपॉर्टेंट, किसके लिए, क्यों मेजर करने. तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेजर rate of flow. So venturometer is a device used to measure dash. So venturometer is a device used to measure dash. तो dash मतलब समझ जाना है आपको कि यहाँ पे डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरोमीटर का यूज करते हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो. तो रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग क्या होता है, डिस्चार्ज, Q. ओके, रेट ऑफ फ्लो को ही क्या बोलना है आपको, डिस्चार्ज. तो हम लोग जो है साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, जो कि आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी काम में आएंगे. सो वेंचुरोमीटर जो डिवाइस है, ओके, मेजरिंग डिवाइस है. सो तीनों भी मेजरिंग डिवाइस है, पिटॉट ट्यूब, वेंचुरोमीटर और ऑरिफिस मीटर, बट हर एक का एक डिफरेंट एप्लीकेशन है. तो वेंचुरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो, टू मेजर द डिस्चार्ज. ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कि वेंचुरोमीटर किसके लिए यूज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो टू मेजर द डिस्चार्ज बोलेंगे हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. A short converging part. Next one is the throat. Converging part के बाद में क्या है, throat, and the diverging part. So it is based on the principle of Bernoulli's equation. It is based on principle of Bernoulli's equation. किसके ऊपर डिपेंड है ये, इसका प्रिंसिपल क्या है, it is based on principle of Bernoulli's equation. It is based on the principle of Bernoulli's equation. ठीक है, तो चलो हम लोग इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे assumptions. So let us assume, let A1, okay, A1 is the area at entry, area of section at entry, और 1 सेक्शन भी बोल सकते हो आप लोग. सो एरिया ऑफ इनलेट बोल सकते हो, या फिर एरिया एट सेक्शन 1 बोल सकते हो. ठीक है, A2 एरिया ऑफ थ्रोट सेक्शन,
जिसे हम लोग 2 2 बोलने वाले। सो दिस इज द 1 1, एंट्री को बोलेंगे हम लोग 1 1, सेक्शन 1 1, और थ्रोट को बोलेंगे हम लोग सेक्शन 2 2। This is section 2 2. So area at section 1, that is entry, area of throat, that is at section 2 2. D1 D2 are the diameter at the section entry section and throat section, that is 1 1 and 2 2. V1 is equal to velocity at section 1 1 or entry, velocity at entry or section 1 1. V2 velocity of exit. V1 is equal to velocity at entry and V2 is equal to velocity at the exit. Okay. Now area जो है कैसे निकालते हैं हम लोग? area जो है, area is nothing but the pi by 4 d1 square. Reason is what? It is a circular cross section. पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कुलर. तो pi by 4 d1 square, a2 होता है आपका pi by 4 d2 square. याद रखना है सभी को. pi by 4 d1 square, pi by 4 d2 square. Now अभी हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे between section 1 1 and 2 2. So applying Bernoulli's equation between section 1 1 and section 2 2. तो सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2 में क्या करेंगे हम लोग? बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे. So what is Bernoulli's equation? Bernoulli's equation is what? The sum of pressure head P by rho g, datum head Z, and kinetic head V square by 2g is constant. So the pressure of all these three head is constant at every point for incompressible fluid. So this is applicable. Bernoulli's equation or Bernoulli's theorem is applicable for incompressible fluid. IMP question. Incompressible fluid. Incompressible fluid मतलब क्या? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? स्टेडी अनस्टेडी मतलब क्या? ये सारी चीजें कवर की है हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में, और ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो इट इज कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए यूज होता है. एंड व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन? जो पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड ये कांस्टेंट होता है एट एवरी पॉइंट. तो हम लोग इसे अप्लाई करेंगे फॉर सेक्शन 1 1 to 2 2. तो ये हो जाएगा आपका P1 by rho g, ये हो जाएगा आपका Z1, ये हो जाएगा V1 square by 2g 1 पॉइंट के ऊपर इज इक्वल टू 2 पॉइंट के लिए P2 by rho g प्लस Z2, Z की जगह पे Z2 और V की जगह पे V2 square by twice g, V2 square by twice g. So that is called as a Bernoulli's equation. इसे क्या बोलेंगे हम लोग? Bernoulli's equation बोलेंगे. और इसे अप्लाई किया हमने पॉइंट 1 to पॉइंट 2. मतलब summation of all these three heads is constant. That is the summation of all three heads at point 1 must be equal to the summation of all three head at point 2. So that is our Bernoulli's equation. So Bernoulli's equation का आपको यूज करना है. अब यहाँ पे एक अगर कोई डेटम कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, सपोज ये हमारी डेटम लाइन कंसीडर कर लेते हैं. तो अगर हम लोग इस डेटम से डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे, बिकॉज एज पाइप इज हॉरिजॉन्टल, तो अगर ये डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे तो ये Z1 होगा, एंड ये सेक्शन 2 पे डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंटर से तो ये Z2 होगा. तो आपको जो डिस्टेंसेस दिख रहे हैं Z1 Z2 ये दोनों भी सेम दिख रहे हैं बिकॉज पाइप इज हॉरिजॉन्टल. अगर आप कोई डेटम हेड मतलब क्या, आपको एक डेटम लाइन से आपको हाइट काउंट करना है टू द सेंट्रल एक्सिस. तो ये जो Z1 है और Z2 ये दोनों भी सेम दिख रहे हैं आप लोगों को बिकॉज पाइप इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल.
वेंचुरीमीटर जो है आपका परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होने की वजह से Z1 Z2 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। Z1 इज इक्वल टू Z2 फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए हमेशा याद रखना Z1 और Z2 दोनों सेम होते हैं, तो प्लस Z1 इधर लेके आओ माइनस Z1, तो Z1 की जगह पे Z2 रखो, प्लस Z2 माइनस Z2 कैंसिल। अब बचा क्या, P1 बाय रो जी। इस प्लस P2 बाय रो जी को उधर लेके जाओ, माइनस P2 बाय रो जी हो जाएगा, इज इक्वल टू बचा है V2 बाय रो जी, V2 स्क्वायर बाय 2G। इस प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G को इधर लेके आओ, माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G। प्लस वैल्यू को इधर लेके आओ, माइनस वैल्यू, तो ये प्लस P1 बाय रो जी, प्लस P2 बाय रो जी, माइनस P2 बाय रो जी, प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। So now the pressure difference at point 1 and 2 is nothing but the H is assumed to be H, that is called as a pressure head। तो pressure at point 1 and 2 जो हम लोग assume करेंगे that is the pressure difference। pressure at point 1 P1 and pressure at point P2 pressure difference। pressure difference is assumed to be H suppose। so pressure difference P1 माइनस P2 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, रो जी इज इक्वल टू H। प्रेशर डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, H। सो P1 माइनस P2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन सब्सट्रैक्शन। सो P1 माइनस P2 बाय रो जी को बोलेंगे आप H, तो H इज इक्वल टू मिलेगा आपको V2 स्क्वायर बाय ट्वाइस G माइनस, यहाँ पे V1 चाहिए बिकॉज प्लस V1 को उधर लेके गए हम लोग माइनस V1, सो माइनस V1 स्क्वायर बाय ट्वाइस। तो ये आपको मिला एक इक्वेशन, उसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद में अब मैं वैल्यू निकालूंगा V1 की, वेलोसिटी एट पॉइंट 1। तो वेलोसिटी एट पॉइंट 1 अगर मुझे निकालना है तो मुझे कंटिन्यूटी इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है। सो व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3। so product of area and velocity is constant, discharge is constant। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, कहां पे पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ये पढ़ा हुआ है हमने डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हमने यूनिट को स्टार्ट किया था। तो डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। और बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो कौन से फ्लूइड के लिए लागू होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो मैं वापस स्ट्रेस दे रहा हूं इन सब चीजों के ऊपर एमसीक्यूज के लिए। बर्नौलीज इक्वेशन कौन से फ्लूइड के लिए लागू होता है, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए लागू होता है। उसके बाद में फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप पोटेंशियल हेड दैट इज डेटम हेड जो है वो सेम होता है फॉर पोटेंशियल फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। यहां से मैं V1 अगर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा A2 V2 बाय मल्टीप्लाइड बाय A1, इधर लेके आओ डिवाइडेड बाय A1। तो यहां से मुझे V1 की वैल्यू मिल जाएगी, और ये V1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट अप कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में जाके। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। So using equation number 1, so what is our equation number 1? H is equal to V2 square by 2G, V2 square by 2G minus V1 square। तो V1 की वैल्यू क्या है, A2 V2 by A1, यह है V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू। तो V1 की वैल्यू क्या है, A2 V2 by A1। तो V1 की जगह पे मैं इधर लिख देता हूँ A2 V2 by A1 और इस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G। तो क्या किया हमने, V1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी। ओके, पुट V1 इन इक्वेशन नंबर 1।
तो इक्वेशन नंबर 1 में V1 की वैल्यू रख दो और कॉमन देखो क्या क्या मिलेगा अभी आपको। कॉमन मिलेगा आपको V2 स्क्वायर बाय 2G, V2 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर बाय 2G, दोनों में से कॉमन मिलेगा V2 स्क्वायर बाय 2G। तो V2 स्क्वायर बाय 2G को कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। V2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, बचेगा A2 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर अपॉन 2G को कॉमन ले ली, तो बचेगा क्या सिर्फ A2 बाय A1 होल स्क्वायर। तो A2 का स्क्वायर A2 स्क्वायर, A1 का स्क्वायर A1 स्क्वायर बचा। तो यहां से मिला आपको H। ओके, सो H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय ट्वाइस G। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, A1 स्क्वायर 1 जा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर 1 जा A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर 1 जा A1 स्क्वायर। तो क्या किया हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है तो 1 अज्यूम करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A1 स्क्वायर 1 जा A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर 1 जा A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर 1 जा A1 स्क्वायर। ये हुआ आपका H का वैल्यू। बट आपको चाहिए वेलोसिटी, आपको चाहिए क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, V2 निकालना है हमें। तो ये 2G डिवाइड में इधर लेके आओ मल्टीप्लाइड में, तो H इंटू 2G इज इक्वल टू V2 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक आपको मिल चुका है H वैल्यू, 2G H वैल्यू। बट हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो देयरफॉर ये A1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये न्यूमरेटर में उधर जाने के बाद में डिनोमिनेटर में चले आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और बचा यहाँ पे 2GH। दिस इज वेलोसिटी 2 स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकालना है हमें, तो ये ब्रैकेट को इधर भेज देते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में। तो ये हुआ V2 स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, V2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा V2, A1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा A1, और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, क्योंकि कंपोजिट टर्म है, इसका A1 माइनस A2 नहीं होगा, A1 स्क्वायर का A1 होगा, V2 स्क्वायर का V2 होगा, बट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होगा, एंड 2GH का स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट ऑफ 2GH। So this is the final velocity V2. So velocity at exit. So velocity at exit V2 is equal to A1 by under root of A1 square minus A2 square under root of twice GH. Now how to find the discharge? How to find the discharge? So discharge Q is equal to A2 V2. Q is equal to A2 V2. So this is A2, A1 V1 or A2 V2. So A2 into V2. V2 is A1 upon under root of A1 square minus A2 square under root of twice GH. This is the value of V2. So put the value of V2 here, and finally A1 into A2, A1 A2 under root of A1 square minus A2 square, A1 square minus A2 square into under root of 2GH. This is the value of Q in case of Venturi meter. तो वेंचुरी मीटर के लिए अगर डिस्चार्ज निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर। तो डिस्चार्ज अगर आपको मेजर करना है थ्रू वेंचुरी मीटर, so formula is A1 into A2 upon under root of A1 square minus A2 square under root of twice GH. A1 is the area at the entry, pi by 4 D1 square, area of throat, pi by 4 D2 square. Now how to find the H value? How to find the H value? So H is nothing but the pressure difference. What is H? H is nothing but the pressure difference. So this pressure difference is find out by using this manometer. So what is H? H is equal to pressure difference. So pressure difference H कैसे निकालना है? तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक, इफ पाइप फ्लूइड, ये पाइप है आपका,
and this is manometer. If the density of pipe fluid or fluid flowing through pipe if the density of fluid flowing through pipe is less than the density of fluid in manometer, ओके मतलब पाइप में होगा हेवियर फ्लूइड, लाइटर फ्लूइड, सॉरी, पाइप में होगा लाइटर फ्लूइड एंड मैनोमीटर में होगा हेवियर फ्लूइड, ठीक है। तब क्या होगा, देखो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अगर पाइप में लाइटर फ्लूइड है और मैनोमीटर में हेवियर फ्लूइड है, मतलब यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी हेवियर फ्लूइड है और यहाँ पे वाटर लाइटर फ्लूइड है। सो लाइटर फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट है, इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन द मैनोमीटर और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द मैनोमीटर। मतलब पाइप में लाइटर फ्लूइड है, मैनोमीटर में हेवियर फ्लूइड है, तो जो H जो है आपका H प्रेशर डिफरेंस H इज इक्वल टू X इन ब्रैकेट SH अपॉन SL माइनस 1, SH अपॉन SL माइनस 1। So S is what? Specific gravity. S is what? Specific gravity. So specific gravity of heavier fluid upon specific gravity of lighter fluid. X क्या है? X क्या है? मैनोमीटर रीडिंग। X क्या है? मैनोमीटर रीडिंग। सेकंड कंडीशन H कैसे निकालना है? इफ पाइप contains lighter fluid than मैनोमीटर। अब जो है लाइटर फ्लूइड कहां पे है, मतलब द डेंसिटी ऑफ पाइप फ्लूइड इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर। सो पाइप कंटेन हेवियर फ्लूइड, या फिर इस तरह से लिख देते हैं, इफ द डेंसिटी, उल्टा लिखेंगे अभी, इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग through, if the density of fluid flowing through pipe is more than the density of fluid in nanometer, so उल्टा कर दिया हमने। अब यहां पे सपोज वाटर है और यहां पे कोई भी एक ऑयल वगैरह है, पेट्रोल है, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है, 0.8 0.9, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है सपोज। मतलब यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने। अभी क्या किया मैंने, पाइप में जो है वो हेवियर फ्लूइड एंड मैनोमीटर में जो है लाइटर फ्लूइड। मैनोमीटर में क्या है, लाइटर फ्लूइड, उल्टा कर दिया। सो लाइटर फ्लूइड अभी कहां पे प्रेजेंट है, इन द मैनोमीटर, एंड हेवियर फ्लूइड प्रेजेंट है पाइप में। तो H कैसे निकालेंगे, अगेन X 1 माइनस करना है आपको, SH माइनस SL। अब क्या करना है आपको, 1 में से माइनस करना है SH माइनस SL। सो 1 में से अगर हम लोग SH माइनस SL कर देंगे तो आपको अभी मिलेगा, तो SH मतलब क्या होगा, सपोज लिख लेते हैं हम लोग वेयर, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में दिक्कत ना जाए। SH मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर फ्लूइड, और SL मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड।
So specific gravity of heavier fluid and specific gravity of liquid flowing through pipe भी बोल सकते हो. Okay, so specific gravity of heavier fluid and specific gravity of lighter fluid. तो ऐसे सिचुएशन में आपको फॉर्मूले चेंज करके आना चाहिए. और x क्या है हमारा? मैनोमीटर रीडिंग, मैनोमेट्रिक रीडिंग मीटर में रखना है. ठीक है. सो x क्या होता है हमारा? मैनोमेट्रिक रीडिंग. दैट इज योर मैनोमेट्रिक रीडिंग. दैट इज योर मैनोमेट्रिक रीडिंग. ठीक है. तो S माइनस एस एच अपॉन एस एल लेंगे हम लोग अगर कौन सा फ्लूइड हेवियर है? पाइप का फ्लूइड हेवियर है. और मैनोमीटर में अगर लाइटर फ्लूइड है तो ये देना है आपको. ठीक है. तो SL माइनस एस एच एंड SH माइनस एस एल. तो ये जो हो जाएगा हेवियर फ्लूइड नहीं होगा, ये क्या होगा अभी आपका? लाइटर फ्लूइड. और हेवियर फ्लूइड उल्टा कर देना बिकॉज माइनस आंसर नहीं आना चाहिए. तो SH बाय SL है तो उसके बाद में करना है SL बाय SH, उल्टा कर देना है. ओके. लाइटर फ्लूइड कहां पे? अभी लाइटर फ्लूइड है पाइप मैनोमीटर में और हेवियर फ्लूइड है पाइप में. तो इस तरह से फॉर्मूला आपको यूज करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज किए जाएंगे इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर. ओके. इन केस ऑफ इंक्लाइन जो होगा, इन केस ऑफ इंक्लाइन वेंचुरीमीटर जो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है उसमें भी ये x की वैल्यू वही उसी तरह निकाल जाएंगी. ओके. सो इंक्लाइन मैनोमीटर हो चाहे आपका हॉरिजॉन्टल मैनोमीटर हो, आपके लिए ये जो फॉर्मूलेज रहेंगे ये सेम ही रहेंगे h के. ठीक है. तो h जो है आपको याद रखना है क्योंकि हमें h यहां पे रखना होगा तब जाके हम लोग डिस्चार्ज निकाल पाएंगे. h यहां पे रखेंगे तब जाके हम लोग डिस्चार्ज निकाल पाएंगे. तो डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको h चाहिए, दैट इज प्रेशर डिफरेंस. h मतलब क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस. तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो अगर आपको निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से जगह पे कौन सा फ्लूइड है. पाइप में हेवियर है या लाइटर फ्लूइड है? मैनोमीटर में हेवियर है या लाइटर फ्लूइड है? ये हेवियर या लाइटर, एक तो डेंसिटी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग समझ लेंगे. डेंसिटी जिसकी ज्यादा या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी ज्यादा वो हेवियर फ्लूइड. और उस हिसाब से फिर हम लोग x निकाल लेंगे.